Hello everyone. My name is Samarpan Vashisht, and I apologize for missing yesterday's newspaper. I was not feeling well. However, I'll cover the newspaper of yesterday too. There were some things which we need to study. So before we start the class, I want to convey that in the pinned comments, we'll put the links for yesterday and today's newspaper's notes of the annotated version from our Telegram channel, which you can download. Furthermore, we have also come up with a compilation of the annotated version of the month of December. So you can get the compilation book from our institute too. Let's start. The first news which is important from exam point of view is that Honorable Prime Minister talked about PM Kisan Samman Nidhi. PM Kisan Samman Nidhi is the 6,000 rupees grant which is given, or direct benefit transfer which is given to the farmers in 3 tranches of 2,000, 2,000, 2,000 rupees, and this was supposed to augment and supplement the income of the farmers. There is not any other news which is important from exam point of view. Simlipal Tiger Reserve is again in the news. In one of the previous class, we had seen that which river passes through Simlipal, where does it lie, and what are its species, etc. So you can see that from here, or you can search it on the internet and you can read about Simlipal, the river, where it is located. What are other tiger reserves of Odisha? Now, moving on to the national news which are important from exam point of view. Yes, the Honorable Supreme Court has held that the segregation of waste at source is important for well-being of the environment. So, if we do the case study of Indore, we'll find that Indore has been a successful model of Swachh Bharat Mission because they have done the waste segregation at the source. So, dry waste, wet waste, plastics, metals, etc., etc., at the source itself. What happens is, when you segregate the waste at the source, it leads to better recycling, better reuse, and better disposal. This needs to be done. The Honorable Supreme Court has said that segregation of garbage at home is of the vital importance for the well-being of the environment. So that is one thing. So if there comes any question on waste management, the idea is that the first thing which we need to do is we need to ensure that it gets segregated at the source. So when it gets segregated at the source, waste to energy generation can be done in a more effective manner, because then the waste which has low calorific value will not be used, only high calorific value waste will be used. Moving on, ILO chief talked about the World Social Protection Report 24-26. This report is important, which can be asked in the prelims. Moreover, you can also use this social protection report and you can quote in your answers on inclusive development. You can say that social protection has been increased as held by the World Social Protection Report 24-26. Moving on, there is a news about internet shutdowns, but I don't think this is important from any point of view per se. But if you want to read it for your own pleasure, you can read it. Moving on, if we go ahead, the Madras High Court had dismissed a petition against the Mahashivratri celebrations at Isa Yoga Center. So whenever you are watching this video, the people who are watching this video, I wanna say that आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान शिव सब मंगलमय करें, शुभ करें. Anyways, let's move ahead. Emission intensity target to be released by month end. So understand this. India has made some commitments in its commitments to United Nations UNFCCC. What are those commitments? They are your NDCs, nationally determined contributions. In that, we had said that we will decrease our carbon emission intensity by 30 to 35% by the year 2030, considering the 2005 level. However, in the revised version in Glasgow, we have said that we will reduce
our carbon emission intensity by 2030 at the 2005 level by 45%. So BEE, that is Bureau of Energy Efficiency, is going to submit its BEE is going to release some emission targets for, let's say, nine industrial sectors. So understand this with example. Let's say previously you were using 100 units of carbon to produce, let's say, steel. Now BEE, Bureau of Energy Efficiency, will mandate a limit. It will say that these are the targets which a company has to follow, and if the company is not able to follow the targets, either they can buy the carbon emission certificates, or if they have not exceeded this limit and they have some saved up unit, they can sell it, sell these certificates to the companies, to the industries which have not met their targets. What is this Bureau of Energy Efficiency? First, let's understand that it was created on 1st March 2002 under the provisions of Energy Conservation Act. The mission of the Bureau of Energy Efficiency is to assist in developing policies and strategies with a thrust on self-regulation and market principles. So they have asked the questions. So for example, in 2016, this question was asked that on which of the following can you find the Bureau of Energy Efficiency star level? Ceiling fan, electric geysers, tubular lamps. 1 and 2, 3, 2 and 3, and 1, 2 and 3. Similarly, in 2023, they had asked a question that carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Of course, it is true. Carbon market transfer resources from the private sector to the state. This was a very controversial statement. However, UPSC considered this statement to be correct. So answer was B, that both statement 1 and 2 are correct. However, 2 is not the correct explanation of the statement 1. Understand it from what carbon pricing instruments are. So carbon pricing can be done in two ways. One is the voluntary mechanism, one is the compliance mechanism. In compliance mechanism, emission trading schemes are there in which we do cap and trade. So we say that if you are not able to achieve a particular target, either you can buy the certificates of carbon emission reduction, or if you have achieved the targets and you have some saved up units, you can sell them to other companies which have not achieved this. Second is voluntary method, in which there is no mandatory thing which the company needs to do. However, they are motivated, or they are asked in a voluntary manner to reduce their carbon emission intensity. So in that context, Bureau of Energy Efficiency will announce, it is said that it will announce the emission intensity target for nine industries, and this would be under, or this would be done now, after in June 2023 a carbon credit trading scheme was announced. Okay, so what would be those industries? It is said that iron, steel, aluminium, chloroalkali, cement, fertilizers, pulp and paper, petrochemicals, petroleum refinery, and textiles will be the industries which will come under these 9 industries for which BEE is supposed to announce the emission intensity targets. ठीक है जी. तो दो सवाल हमने देखे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से आए, जो कार्बन मार्केट मैकेनिज्म से आए. हमने देखा कि हमारा क्या टारगेट रहा है. 30 to 35% हमने रखा था पहले एनडीसी में, लेकिन जब हमने रिवाइज दिए तो उसको हमने बढ़ा के 45% कर दिया एट द 2005 लेवल बाय 2030. दूसरा हमने देखा कि कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स दो तरीके के होते हैं, कंप्लायंस, एक वॉलंटरी. कंप्लायंस में जैसे एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स होती हैं, कैप एंड ट्रेड होता है, और वॉलंटरी में जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मैंडेटरी लिमिट नहीं रहती है. चलिए, having said that, there was this article, the science article regarding scientists proposed tabletop test to check quantumness of gravity. So there are 4 forces
जिनके बारे में इसमें बात की गई है। पहला रिलेटिविटी एक फोर्स है, दूसरे 3 क्वांटम मैकेनिक्स के फोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोनों मैथमेटिकल इक्वेशंस में बिल्कुल सही फिट बैठते हैं, लेकिन जब हम जनरल रिलेटिविटी या ग्रेविटी की बात करते हैं, उसके साथ क्वांटम मैकेनिक्स के बाकी 3 फोर्सेस को फिट करने की बात करते हैं, तो इक्वेशंस खराब हो जाती हैं। इंडिविजुअली दोनों सही हैं। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या रही है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो भी स्टडीज हुई हैं, वो ग्रेविटी को बाकी 3 फोर्सेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, उसके साथ फिट नहीं बैठा पाए हैं। बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी आई है, लूप क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी आई है। दे हैव ट्राइड टू एंश्योर कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो दोनों आपस में फिट हो जाएं। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने साइंटिस्ट ने सोचा है। हमको नहीं पढ़ना है साइंटिस्ट के बारे में, इतनी सी बात समझनी है, जो क्वांटमनेस है वो ऑब्जर्वेशन करने पर चेंज हो जाती है, जिस वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, जिस वजह से हम उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को ऑब्जर्व करने से उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक श्रोडिंगर्स एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, या और दूसरे एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, जो इस बात को क्लियर करते हैं कि व्हेन यू ऑब्जर्व ए फिनोमिना इट चेंजेस बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसमें से एक दिक्कत यह है कि ग्रेविटी और बाकी जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उनको आपस में एक सीमलेस वेब में बनाना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल रहा है। हाउ डज स्पेस ट्रैवल अफेक्ट हेल्थ, नहीं पढ़ना, किस काम का हमारे। सर्वाइविंग रेडिएशन क्विज है, देख लीजिएगा। ये जेनरिक ड्रग्स का एक इशू इसमें आया है। इसने बताया है कि कैसे गैम्बिया में डाइथाइल ग्लाइकोल की वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। फिर से हमने इस ड्रग की ऑलरेडी बात कर ली है, जो ओपियोइड ड्रग्स हैं, कैसे इंडिया ने, सीडीएस को ने प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए उनको बैन किया है, कैसे उनके पास लाइसेंस नहीं था फिर भी वो फंक्शन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था सीडीएस को क्या काम करता है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक दूसरा नीचे आर्टिकल है, जर्मनी नीड्स टू टॉक टू रशिया टू ड्राइव ए हार्ड बार्गेन फॉर यूरोप। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं आंसर राइटिंग में यूज नहीं कर पाओगे, ना ही ज्यादा कोई प्रीलिम्स में सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। आरटीआई एक्ट फिर से एक बार न्यूज में है, इस बार ये कई बार खबर में आ चुका है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आरटीआई एक्ट वर्ष 2005 में इनेक्ट किया गया था, विच गिव्स ए राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट। इट वाज अ वेरी एम्पावरिंग लेजिस्लेशन, जिसकी वजह से लोग सूचना का अधिकार के कानून के तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकते थे क्या, और ये समझ सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्यों उनका कुछ काम नहीं हो रहा है, इस तरह की इसमें प्रोविजंस हैं। दिस एस्टैब्लिशेस द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एक हायरार्की बनाता है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील के इस कानून में प्रोविजंस हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। पहला, इसमें एक जो सुओ मोटो डिक्लेरेशन, सुओ मोटो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो बात है, वो फॉलो नहीं की जा रही है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद खाली हैं। इस एक्ट में आपको कुछ एक मिनिमल फीस देनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेट्स ने उस फीस को देने के तरीके को बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, बहुत सारा बैकलॉग है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद खाली हैं। ये सब दिक्कतें आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करने में आती हैं। उसके साथ साथ एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास एक बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ या किसी पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते, उसकी एक जरूरत है। इस एक्ट को बहुत सारे जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से थोड़ा सा कमजोर भी कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इन्होंने बात किए हैं। शैलेश गांधी ने, इज ए फॉर्मल चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय द वे, तो बहुत सारे जजमेंट्स ने भी उसको वीक किया है। उसके साथ साथ इन्होंने एक गिरीश रामचंद्रन देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का
एक केस बताया है और बताया है कि कैसे उनको एक इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन को मना कर दिया गया था गलत कारणों की वजह से। ये सब इन्होंने बात की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आरटीआई कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कैसे जो एक 30 डेज का कानून है उसको उसकी 30 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसकी अवहेलना की जाती है, और जो फाइन्स इम्पोज्ड होता है वो कलेक्ट भी नहीं किया जाता, ये सब बातें शैलेश गांधी ने अपने इस आर्टिकल में की हैं। ठीक है जी। नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो एक आर्टिकल है फेंसिंग आउट इंटरफेथ रिलेशंस, हमारे ज्यादा काम का नहीं है। यूजीसी की जो चेंजेस हैं उसके बारे में एक ये आर्टिकल आया है, बहुत काम का नहीं है पर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देश में क्या चल रहा है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पुलपरी बालकृष्णन का एक आर्टिकल है, आप इसको अपनी समझ के लिए पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ए यूनाइटेड फेस फॉर इन्वेस्टर्स स्टेट स्पेसिफिक, बीएसएनएल को प्रॉफिट हैज टर्न ए प्रॉफिट बट नॉट बिकम प्रॉफिटेबल, हमारे किसी काम का आर्टिकल नहीं है। पायलट्स के रेस्ट से रिलेटेड ये बहुत एक बड़ा एक्सप्लेनर आया है, हमको अगेन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ये आर्टिकल है सर्विलेंस कैपिटलिज्म पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो, एग्जाम में कुछ खास यूज नहीं कर पाओगे लेकिन कुछ हो सकता है कोई टर्म मिल जाए, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की बात की गई है, बहुत सारी बुक्स इसमें कोट की गई हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन, इंडियन टेक इंडस्ट्री रेवेन्यू प्रोजेक्टेड इंडाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट को कुछ हो गया है, यूके और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जब साइन होगा तब देखेंगे। सोवरेन फंड बना दिया है इंडोनेशिया ने, कोटेक में कुछ हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जी जिनपिंग कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारे किसी काम का ज्यादा। एंटी नार्कोटिक्स प्रोग्राम एट पोर्ट्स मेक्सिको हिट आफ्टर यूएस had stopped dreams to return home, then comes this sports pay. That's it. That's for the 26th, that is for the 25th February's newspaper. That is it. Let's take a look at what has come in the today's newspaper, that is 26th February. Now, if we go to the first front page, Exchequer loss of CAG report has come, slush and water seepage in Telangana is leading to an issue. We pray for the safety and well-being of all those stuck in that Telangana. Moving on, there is no important news from exam point of view as such till the फोर्थ पेज में भी कोई काम के नहीं है। हाँ, एक ये काम का है कि तमल जो स्टेल्थ फाइटर है, दैट इज द लास्ट एयरक्राफ्ट विच इंडिया विल एक्वायर फ्रॉम आउटसाइड. So this is significant because it will be the last warship to be commissioned outside India or to be imported. Now we design our own warships. इसी प्रोग्राम में INS Tushil was the first warship to be manufactured in Russia. This information can be asked in the prelims. Honorable Defense Minister has talked about the Coast Guard, how they help India secure sovereignty and stop illegal infiltration. Not very important from exam point of view. Moving on, political news, not important from exam point of view. Women shifting from unpaid domestic work, government survey. So there is National Statistical Office has released this report. It says that the participation of men and women in the age group of 15 to 59 in employment and activities has increased to 75% and 25% from 70% and 21%. So almost 4 to 5% increase has happened. This survey talks about. It also says that female participation in caregiving activities spent about 140 minutes in a day compared to 74 minutes by the male person of the same age group. This corroborates the fact that Indian social fabric, wherein most of the care responsibilities are borne by the female members. This article talks about. This article also talks about that how females spend 137 minutes in a day, and
how that compares to male. So from such kind of articles you can get the data, you can note the data down, and you can use this in your essay writing, in your articles about in your answers about equality and women labor force participation, etc. So this should be read so that you can note down the data, and since it is government data, it is the authentic data, I believe. Researchers spot a clue as to why human and mouse genome have the overlap. So this article, read it. This is important because it gives you the broad understanding of what DNAs are. If you have science background, and if you know what DNAs are, what are genomes, what are chromosomes, what are mRNA, what are ribosomes, don't read it. However, this from gene to protein, this para is very important. It talks about how DNA is a double helix molecule, and each helix is a strong of 4 bases, and this is held together because a base on the one strand bonds with the base on the other strand, ATCG, जो आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस क्लासेस में. When a gene is expressed as the cell, it copies the sequence of bases into mRNA and loads it into a cellular machine called ribosome. This mechanism has been talked about. In the ribosome, the base sequence specifies the specific sequence of amino acid that should be stitched together to make the protein encoded by the gene. So this particular para, this from gene to protein, is important to understand how genes lead to making of the protein, what is the work of ribosome, what is the work of mRNA, and how different bonds are there in the structure. Read it from that point of view. It might also give you some terminology such as TRA2B gene that has 8 introns, etc. So to understand, to have a broad perspective about things, to ensure that if some elimination kind of thing comes, you are able to solve that, you need to read this article. Moving on, leaping through time, what leap years get, not important. The rights rise, Europe state of denial, होता रहे, हमें क्या, भारत का हमको लेना देना है. Blunt weapon, India should end net curbs, ठीक है. Human smuggling, wild and safe, human wild habitat fragmentation has led to rise in human wild conflict. ये पढ़ लो. बट अगेन ये परसों भी आपको बताया था मैंने कि वो एक द हिंदू के लास्ट पेज पर वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का कुछ डेटा वेटा दिया था केरला का. सो वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा. इसमें ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो चांसेस आर की सवाल पूछा जाए तो उस लिहाज से इसको पढ़ा जा सकता है. बट अगर आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है तो छोड़ भी सकते हैं. एक उर्मी टैट, इसी AI फेलो, US इंडिया AI फेलो इन ORF, उनका एक आर्टिकल आया है. शी टॉक्स अबाउट हाउ AI is leading to high energy consumptions because it do very complicated computing. It needs infrastructure, hardware production, it needs cloud data centers. It contributes to a lot of greenhouse gas emission, and she says that energy needs to be the green energy needs to be used for AI. She also talked about how GPT can emit up to, or AI models can emit up to 552 tons of carbon dioxide. And she also tells that we need to understand what is happening, we need to measure things, we need to disclose the information so that we can understand how to fight this issue of climate change or issue of greenhouse gas emission because of the AI. Just read it for your own understanding. You can also write some data when you talk about the harmful effect of AI. You can say कि it not only creates some ethical issues, it not only creates some ethical conundrums, it also creates the issues related to environment. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. बहुत बात हो रही है इंटरनेट शटडाउन की, नॉट इम्पोर्टेंट. शुड देयर बी ए थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला? रीड दिस आर्टिकल. दो चीजें इससे होंगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको समझ में आएंगे, एक लैंग्वेज इश्यूज का इतिहास आपको समझ में आएगा, तीसरा आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा भी मिलेगा. जैसे ये आर्टिकल बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में, तो एक समझते हैं क्या प्रोविजन है. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान था
that और प्रावधान है that Hindi is the official language of the union and English was originally meant to communicate as the official language from the 15 years from the date of the commencement of the constitution. 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिए इंग्लिश का कंटिन्यूएशन बढ़ा दिया गया था एंड उस पर कोई लिमिट भी नहीं रखी गई थी, टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई थी. फर्दर मोर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो कोई भी लैंग्वेज या हिंदी अपना सकते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. फर्दर मोर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट it will be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language and it will so that it can serve as the medium of expression and for all the elements of the composite culture of Indian. अब ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द न्यू एजुकेशन और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968. उसमें ये पहली बार आया था. ये पॉलिसी और द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन विच केम इन 1968 मैंडेटेड द टीचिंग ऑफ हिंदी एज ए लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट. बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई तमिलनाडु में, जिसके बाद तमिलनाडु ने टू लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया था. बोला था कि हम इंग्लिश और तमिल के अलावा दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं कराएंगे. ठीक है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रिटेन किया है, हालांकि इसने मैंडेटरी नहीं किया है. इट डज नॉट इम्पोज एनी लैंग्वेज ऑन एनी स्टेट. जो एनईपी 1968 थी उसने मैंडेट किया था, उसने बोला था कि हिंदी पढ़ाई जानी पड़ेगी. लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसने कोई भी मैंडेट नहीं, मतलब कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं किया है. उसका सिर्फ ये कहना है कि आपकी मर्जी की जो भी चॉइस हो आप वो भाषाएं सिखा लीजिए, बट उनमें से तीन लैंग्वेज में से दो भाषाएं भारत की हों. ये बात करती है. लेकिन तमिलनाडु ने और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर टसल बनी हुई है. तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि आप फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं तो मत करो, हम फिर भी हिंदी नहीं अपनाएंगे, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, जबकि नहीं है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मैंडेटरीली आपको हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, जबकि 1968 वाली पॉलिसी में लिखा गया था. न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ ये कहती है तीन लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाओ जिसमें से दो भाषाएं भारतीय हों. ठीक है. अपनी अपनी राजनीति हो. ठीक है. उसके बाद जो डेटा दिया गया है, ये डेटा एजुकेशन के बारे में दिया गया है कि कैसे एसर रिपोर्ट बताती है कि कितने लोग क्या सरकार ने खर्चा किया है, क्या स्टेट ने खर्चा किया है, कितनी जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, क्या इश्यूज हैं एजुकेशन के. तो ये डेटा एजुकेशन के पर्पज से नोट कर सकते हो. ये वाले प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, लैंग्वेज एक्ट के, ये जरूरी हैं ये समझने के लिए कि भाषा के ऊपर क्या लैंग्वेज के ऊपर क्या संविधान, हमारे संविधान में प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या उस पे एक्ट्स हैं और क्या बैकग्राउंड की लड़ाई रही है लैंग्वेज को लेके. ठीक है जी. उसके बाद एक आर्टिकल है व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल अबाउट द अरेस्टिंग वुमेन एट नाइट. तो एक मदुरई बेंच ने, मद्रास हाईकोर्ट की दीपा वर्सेस एस विजयलक्ष्मी केस में ये रूलिंग दी है दैट भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजन है which restricts the arrest of women after sunset and before sunrise is directory in nature, it's not mandatory. मतलब अरेस्ट जो है वो अगर हो जाता है तो that cannot be held null and void, that is not the breach of the section 46 clause 4 of the code of criminal procedure of the सुरक्षा संहिता का वो वायलेशन नहीं है, क्योंकि उसमें उस एक्ट में नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस का कोई प्रोविजन नहीं बताया गया है, इसलिए वो मैंडेटरी डायरेक्शन है ना कि कंपलसरी डायरेक्शन है. इस पे अगर आपको 2 घंटे की वीडियोस देखनी है तो देखते रहो. इतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस थी समझने के लिए कि इशू क्या है. इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने का. इस पर मैं भी 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूं इसका इतिहास समझाने के लिए, पर कोई पॉइंट नहीं निकलेगा. चलो, पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज आर रीराइटिंग इंडियन इलेक्शंस. ठीक है, जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट है वो इस बात को, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बाकी लोग छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. नो योर इंग्लिश में आप फ्रीबी शब्द का उच्चारण सीख सकते हैं आज के, आपकी मर्जी. इसके साथ साथ एक मेट्रिकुलस नाम का एक शब्द भी है जो वर्ड ऑफ द डे द हिंदू ने दिया है. सो बी मेट्रिकुलस इन योर प्रिपरेशन.
जान सकते हैं कि क्या इशू है। चाइनाज ग्रिप ऑन ग्लोबल निकल सप्लाई टाइटन्स विद एंग्लो सेल टू MMG। यहां से ये आर्टिकल काम का नहीं है। क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों जरूरी है, भारत के डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, कैसे चाइना बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करता है, ये सब मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको पढ़ना है। यहां से सिर्फ समझना है कि निकल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, निकल सबसे ज्यादा कहां होता है, क्योंकि पहले टाइटेनियम का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, है ना, या लिथियम का पहले एक एग्जांपल दिखाया था, वो सब पूछे जा चुके हैं यूपीएससी द्वारा। तो अभी निकल न्यूज में है, तो निकल के बारे में आपको जानना है कि सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा माइंस वगैरह कहां पर हैं। और इसके साथ साथ मेंस के पर्सपेक्टिव से कि भारत की क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी में चाइना मतलब कैसे उसको इफेक्ट कर सकता है, चाइना का कंट्रोल क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ये सब पढ़ने वाली बात है। यहां से वो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, ना कि ये आर्टिकल पढ़ना है। चलिए, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड्स ड्रैग ऑन यूनिलीवर, ठीक है। ये एक शब्द जो है सिमांदो माइंस ऑस्ट्रेलिया का है, ये एक न्यूज में है, तो हो सकता है कभी लोकेशन वगैरह में पूछ ले, इसलिए पढ़ लो। चलो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ कुछ हुआ है, तो वो क्या क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि यूएनएससी की इसने बात की है, ये बताया है कि उसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि यूएनएससी में परमानेंट 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 के पास वीटो पावर है और वो परमानेंट मेंबर है। ये भी आपको पता होगा कि वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो रोटेटिंग बेसिस पे उसमें शामिल किए जाते हैं, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। ये समझने की बात है। ये जो है कि यूएनएससी में कैसे काम होता है। दूसरा, ये 193 मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली में, उस वहां पर तो ऑफ कोर्स यू नो कि रेजोल्यूशंस पास होने के लिए नॉर्मली 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, 50% की आवश्यकता होती है, डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन। वहां पर तो किसी के पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो इतनी सी बात समझने की है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो बांग्लादेश की न्यूज है, कुछ वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं, उनकी क्यों सुने, हम हमारे जब कहेंगे तो उनकी हम बात सुनेंगे। पैलेस्टीन में फिर से कुछ है, स्पोर्ट्स पेज पे कुछ बातें की गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। हालांकि अगर मन करे तो पढ़ो, पढ़ना अच्छी बात है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन क्या वो एग्जाम में काम आएगा? I don't think so. This ends the newspaper of 25th February and 26th February. I apologize for missing yesterday's newspaper. I was not feeling well. Because of that, I missed this yesterday's class. If that ever happens, कि वो कभी कभी कोई क्लास अगर मिस होती है तो अगले दिन कवर कर दी जाएगी, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम माफी चाहते हैं कि कल का हम न्यूज़पेपर नहीं भेज पाए। कल फिर मिलेंगे, कल के न्यूज़पेपर के साथ, कल की जरूरी खबरों के साथ, कल की जो रिलेवेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन खबरों के साथ। सो थैंक यू सो मच and thank you for joining. I'll see you tomorrow. If you like these classes, don't forget to like, don't forget to share, don't forget to subscribe to our channel. Furthermore, I'll put the link in the pinned comments for the notes. You can download it from our channel. Thank you.